Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor. Students, in this video we are going to start the first chapter of political science, which is power sharing. And now in this chapter we will talk about two countries, Belgium and Sri Lanka, and how they share power. साथ ही we will learn about how they handle the request for power sharing, which means when different groups want more saying how the country is run. I hope तो सबको इस चैप्टर का बेसिक आइडिया आ गया होगा. तो शुरू करते हैं हमारी पावर शेयरिंग की स्टोरी बेल्जियम से. Now Belgium is a small country in Europe and it is smaller in area than the state of हरियाणा. मतलब इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा इस बेल्जियम का एरिया है. So Belgium shares its border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Now if we talk about the ethnic composition of Belgium, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. सबसे पहले तो एथनिक का मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको. So ethnicity refers to a shared cultural identity among a group of people based on common traditions such as language, religion and customs. So the examples of ethnic groups include African Americans, Native Americans in the United States and Flemish Walloons and German speakers in Belgium. Of the country's total population, that is 1.61 crore population, इसमें से 59% of people lives in the Flemish region and they are Dutch speaking. मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? डच. देन 40% पीपल लिव्स इन द वलूनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच. और जो 1% लोग बचते हैं दे स्पीक द जर्मन लैंग्वेज. और ब्रुसेल्स ये बेल्जियम की कैपिटल सिटी है जहाँ 80% के लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं एंड बाकी बचे 20% लोग जो है दे स्पीक डच लैंग्वेज. The minority French-speaking community was rich and powerful and this made the Dutch-speaking community angry, जिन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बेनिफिट्स बहुत ही लेट मिले. अब इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच का गुस्सा इतना बड़ा कि 1950 से लेकर 1960 तक डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन का माहौल चल रहा था. और ये टेंशन का माहौल ब्रुसेल्स में कुछ ज़्यादा ही सीरियस बन चुका था क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है वहाँ माइनॉरिटी में थे एंड पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे. अब ये तो हो गया बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन. अब आगे बढ़ते हैं श्रीलंका का क्या हाल है वो देखते हैं. सो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन and it is located just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. Now Sri Lanka has a diverse population of about 2 crores people. जिसमें से 74% of the people are Sinhala speakers and then most of the Sinhala speakers are Buddhist while most of the Tamils are Hindus and Muslims. 18% of people are Tamil speakers. Now, here are two subgroups of Tamil peoples, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. तो बात करते हैं श्रीलंकन तमिल्स की. श्रीलंकन तमिल्स are the native of Sri Lanka and they constitute 13% of the population जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडियन तमिल्स की. सो इंडियन तमिल्स वो है जिनके 4 फादर्स इंडिया से श्रीलंका आए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एज अ प्लांटेशन वर्कर्स एंड देन वो यही सेटल्ड हो गए. ये हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, याद है ना. सो इंडियन तमिल्स दे कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ द टोटल तमिल पॉपुलेशन. नेक्स्ट देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस.
They are both Tamils and Sinhala. After that, the next topic is majoritarianism in Sri Lanka. So सबसे पहले देखते हैं कि majoritarianism क्या है. So majoritarianism is the idea that the majority should have the power to make decision for the or society without considering the opinions or needs of the minority. मेजॉरिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक मेजॉरिटी की जो कम्युनिटी है वही कंट्री के लिए सारे डिसीजंस लेगी, वही सोसाइटी के लिए कोई भी डिसीजंस लेगी विदाउट कंसिडरिंग द ओपिनियन और नीड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी. ठीक है. सो श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948. And the leaders of the Sinhala community established dominance over the government and their majority. As a result, the government adopted a series of majoritarianism to establish Sinhala supremacy. In 1956, एक एक्ट पास करवाया गया जिससे सिन्हाला लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. द गवर्नमेंट फॉलो द प्रिफरेंशियल पॉलिसीज जो कि सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर्ड करती थी फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई किया गया कि सब लोग बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करेंगे एंड प्रमोट भी करेंगे. अब ये सारा मेजॉरिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग होता है. Because of all these government measures, feeling of alienation gradually increased among Sri Lankan Tamils. They felt कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स लीड करते हैं, they all were not sensitive towards तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर. एंड इसी वजह से सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज के बीच में तनाव का माहौल और भी बढ़ने लगा. Then Sri Lankan Tamils launched parties and they struggle for the recognition of Tamil as an official language. They also demanded regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. But उनकी ये सारी डिमांड बार बार खारिज कर दिए गए. Then by the 1980s, a political organization like LTTE, Liberation Tiger of Tamil Eelam, was formed and they demanded independent Tamil Eelam. इलाम का मतलब स्टेट. सो उन्होंने क्या डिमांड किया? एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का डिमांड किया इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. और इन दोनों कम्युनिटीज के बीच के इस तकरार ने जल्द ही एक सिविल वॉर का रूप ले लिया. अब वॉर हुआ है तो वॉर का कुछ ना कुछ तो असर होगा ही. तो वो क्या असर हुआ था, चलिए देखते हैं. Thousands of people from both the communities have been killed. बहुत से फैमिलीज को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया. And it also caused a great impact on the social, cultural and economic life of the country. और in 2009 ये सिविल वॉर खत्म हुआ. तो ये था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. ये कुछ श्रीलंका के हाल थे पावर शेयरिंग के. अब बेल्जियम में क्या हाल थे वो चलिए देखते हैं. सो अकोमोडेशन इन बेल्जियम. देखो अभी हमने पढ़ा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता चुना, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया. कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन होने के बावजूद इन्होंने दूसरा रास्ता चुना. और वो क्या था तो चलिए देखते हैं. तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने पहले ही बेल्जियम के रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था. एंड दैट्स व्हाई बिटवीन 1970 and 1993 the constitution of Belgium was amended 4 times. और ये अमेंडमेंट इसलिए थे कि सारे लोग एक साथ हंसी खुशी रह सके. तो चलिए जान लेते हैं कि ये क्या क्या अमेंडमेंट्स थे और किस तरह से हुए. तो सबसे पहला है the constitution prescribes that the number of Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government. मीनिंग वॉट कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की तादाद सेम रहनी चाहिए. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. Thus,
no single community can make a decision unilaterally or biasedly. मीनिंग व्हाट कि कोई भी डिसीजन एक पर्टिकुलर ग्रुप या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी नहीं ले सकती, सब कम्युनिटी साथ मिलकर ही डिसीजन लेंगे, तो कोई भी कम्युनिटी को फेवर नहीं किया गया यहाँ पे। देन उसके बाद जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ वो क्या था? देन नेक्स्ट अमेंडमेंट ये था कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से पावर्स कंट्री के दोनों रीजन्स के स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। देन इन थर्ड अमेंडमेंट ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, सो ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट जिसमें दोनों फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। एंड यू नो कि डच कम्युनिटी माइनॉरिटी में थे एंड फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में, बट ब्रुसेल्स गवर्नमेंट में फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ वो ये था कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज community government. It is elected by all the people irrespective of the language spoken by them, that is Dutch, French and Germans. And कोई भी community government में participate कर सकते हैं। Now ये community government क्या थी? So community government has the power regarding cultural, educational and language related issues. अब ये जो बेल्जियम का मॉडल था इसने बड़े ही अच्छे से वर्क किया एंड इस मॉडल की वजह से दो मेजर कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर की सिचुएशन आने से बच गई। Many Europeans came together to form the European Union and they chose Brussels as the headquarters of the European Union. और अभी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है। Now what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? In Belgium, leaders have realized that unity of country is possible only by considering the feeling and interest of different communities and regions. तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने ये जान लिया था कि अगर कंट्री की एकता बनाए रखना है तो हर कम्युनिटीज के, हर रीजन के जो लोग हैं उनके फीलिंग्स को कंसिडर करना या उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है। सो बेल्जियम म्यूचुअली एक्सेप्टेड द पावर शेयरिंग फॉर पीस एंड टू अवॉइड द वॉर रिलेटेड इश्यूज। एंड देन श्रीलंका shows us that if a majority community wants to force its dominance over the others and refuses to share power, then it can undermine the unity of the country. तो श्रीलंका ने हमें ये बताया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो रहती है वो क्या करती है, पूरे कंट्री पर अपना डोमिनेंस बना लेती है एंड पूरे कंट्री पर राज करती है और जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है उनको सप्रेस करती है। सो श्रीलंका एक्सेप्टेड मेजॉरिटेरियनिज्म, मीनिंग व्हाट कि हम पावर को शेयर नहीं करते हैं। सो श्रीलंका एक्सेप्टेड द मेजॉरिटेरियनिज्म, जिसके वजह से वहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ। अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम पावर को शेयर नहीं करते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ सकता है। लाइक कंट्री में यूनिटी नहीं रहेगी, अगर कंट्री के जितने भी कम्युनिटीज़ है उनमें यूनिटी ही नहीं रहेगी तो इनके बीच के जो भी झगड़े हैं, इश्यूज है, उसका फ़ायदा कोई और कंट्री या कोई जो देश का दुश्मन है वो ले सकता है, जिसके वजह से देश को ही नुकसान भुगतना पड़ सकता है। सो श्रीलंका एंड बेल्जियम के एग्जाम्पल से हमने पावर शेयरिंग किस तरह से की जानी चाहिए ये पढ़ लिया। सो आई टेक अ ब्रेक हियर, ज़्यादा जोर नहीं देते दिमाग पर, और बाकी बचे जो टॉपिक्स है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। At the end of the video, I have given some questions related to the video for all of you, which you have to solve with the help of textbook. अब ये questions क्या थे? Question number 1, what measures are adopted by the Sri Lankan government? Question number 2, name the different communities in Belgium. Question number 3, explain the community government in Belgium. Question number 4, what is majoritarianism? Question number 5, explain the reason for the civil war in Sri Lanka. So solve all these questions and we will meet in our next video. Till then, keep watching and keep learning. Stay tuned for next videos and updates. Thank you.